So hi everyone, again let's start with the further provisions of an ITC. अभी भी सेक्शन 8 के एक दो सर्कुलर और एक रूल बाकी है जो कि हमें खत्म करना है. उसके साथ साथ विल ऑल्सो स्टार्ट विद द स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द जॉब वर्कर इन टुडे सेशन. So now understand, we'll just quickly go through this particular circular. Then if you're going to read on your own, you will be having a more better idea also on this. So now understand, there was a section 18 subsection 3. 18 subsection 3. What of that 18 subsection 3? Please pay attention. 18 subsection 3 was applicable in case of transfer of the business. The transferer's balance of ITC, so unutilized balance in his electronic credit ledger can be transferred to the transferee's credit balance. So that 18.3 में बोल रहा था that in case of sale, sale or a transfer or merger, acquisition, demerger, in all these cases, the transferer's electronic credit ledger's balance can be transferred to the transferee's account. So, ये particular circular is something in relation with 18.3 only, but it has a very specific case which have been covered. So, this particular circular has been issued only for the purpose of transfer of input tax credit which remain unutilized to the transferee in case of death of the sole proprietor. So ये जो सर्कुलर है वो कब एप्लीकेबल होगा, पहले वो समझ लो कि ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर है, ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा ओनली इन वन सिचुएशन, and that situation is none other than the death of the sole proprietor. So in case of death of the sole proprietor, वापिस से क्या दिक्कत आएगी ये कि क्योंकि सोल प्रोप्राइटर का पैन नंबर एंड द सक्सेसर्स पैन नंबर, सो इन केस इफ द फादर इज डूइंग सम बिजनेस एंड नाउ सन इज टेकिंग ओवर दैट बिजनेस, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द फादर, son and the father would be having a separate PAN number. So obviously the father's GSTN number cannot be used by the son because GSTN is also PAN based number. So there are multiple events which are taking place here, though it seems like there is only one event which is the death of the sole proprietor. But in case of the death of the sole proprietor, there are multiple events which are taking place for which we need to pay attention that how to particularly deal with this particular situation. And if you are not dealing it with properly, keeping in mind the applicable rules and the provision of the law, you end up occurring some cost in the terms of non-availment of unutilized balance of ITC in the transferer's electronic credit ledger. It may invite certain penalty provisions also in relation with the non-compliances of the provisions of the law. So we need to understand first of all that what is happening in this case. In this case, sole proprietor, now sole proprietor के लिए मैं यूज करूंगा टर्म फादर, सक्सेसर के लिए हम यूज करेंगे टर्म सन. ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा. So in case of death of the father, son want to continue this business. So if the son want to continue this business, then what he need to do? Keeping in mind the provisions of law, we need to find out a logical solution by way of compliance of GST provisions. If we need to run business smoothly, even in case of the death of the father, if you need to continue doing the same business in the same name, then you need to comply with the provision keeping in mind certain important provisions of the law. So हमने सबने रजिस्ट्रेशन प्रोविजन पढ़े हुए हैं और रजिस्ट्रेशन के अंदर सेक्शन 29 आ रहा था, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. जैसे कि मैंने बोला, फादर और सन दोनों का GSTN अलग होगा बिकॉज GSTN इज पैन बेस्ड नंबर. सो फादर का GSTN सन यूज करके बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है. And in case of death of the father, department would not be able to know that the person doing business has died, the sole proprietor has died. So that successor or the transferee need to intimate to this department by way of cancellation of registration,
And since the transferor want to continue this business, the transferor also need to take a fresh registration. Transferor need to take a fresh registration here. And we also need to ensure, so ये दो चीजों में, ये दो इवेंट में हमने कौन कौन सी सेक्शन टच की? एक किया सेक्शन 29 को टच फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफरर, और दूसरा हमने टच किया सेक्शन 22 को, बिकॉज सेक्शन 22 में भी ये बहुत क्लियरली बोला गया था दैट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, इन केस ऑफ द सक्सेशन ऑफ द बिजनेस, द ट्रांसफरी रिक्वायर्ड टू टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन. बहुत क्लियरली सेक्शन 22 में भी बोला गया था. आपको वापस जाके देखना है तो एक बार देख भी लेना. सबसेक्शन 3 में बहुत ही क्लियरली हमें बोला गया था कि वी नीड टू टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what we need to do. What we need to do? What do we need to do? We need to take a separate registration. So there is a registration liability on a transferee or a successor. I'll say registration liability on a transferor or a successor. Under which section? Under subsection 3 of section 22 of CGST Act. हमने पढ़ा है ये कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. ये पर्टिकुलर सेक्शन में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. ट्रांसफरी को सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. द ट्रांसफरी ऑफ द सक्सेसर एज द केस मे बी शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और द सक्सेशन वेयर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड टू द पर्सन फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर. While filing, so now this is important, while filing an application form REG 01 electronically on a common portal, applicant is required to mention the reason to obtain registration as death of the sole proprietor. Because जब आप अप्लाई करोगे तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा है सेक्शन 24 की वजह से, आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया है, या फिर सक्सेशन की वजह से आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो. आप रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हो? या फिर वॉलंटरी अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो. आप रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हो? रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन ओवर देयर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. क्यों? बिकॉज इससे तो आपके आईटीसी के प्रोविजन भी लिंक है ना. तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको द रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑल्सो यू रिक्वायर टू मेंशन, और वहां पे आप लिखोगे दैट यू आर टेकिंग दिस रजिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर. सो सन को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनको लिखना पड़ेगा कि मैं ये रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं क्योंकि आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू द बिजनेस, आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ माई फादर. सो देयरफॉर he need to take a separate registration. Now understand, people may ask a question, thought may comes in your mind, okay, what if the transferee already having a registration, because father के नाम की भी एक फर्म थी, son के नाम की भी एक फर्म थी, और फादर की डेथ हो गई और दोनों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था, तो भी क्या ट्रांसफरी को या सक्सेसर को नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? So answer to that question, according to me, what I understood a little bit, a piece of understanding which I am having out of this law, कि देखो आपको being a transfer, being a son, you need to think that, see, एक ही स्टेट के अंदर अगर आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप करा सकते हैं. पहली बात, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत कराओ. सो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है. अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो कंपल्सन नहीं है. अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो, मतलब सन का अगर रजिस्ट्रेशन है ही नहीं और सिर्फ वो बिजनेस करेगा ये सक्सेशन में, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. लेकिन अगर सन का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है जीएसटी में, तो वापस से जस्ट बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द फादर, ही इज नॉट बाउंड टू टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन. इन केस फॉर एज अ डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल, अगर उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो करवा सकता है. अगर नहीं करवाना है, वही पुराने रजिस्ट्रेशन में बिजनेस को कंटिन्यू करना है, तो वो भी पॉसिबल है. सो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि डेथ के केस में उसको नया रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. पहली बात. तो क्या करेंगे? तो आगे जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, हम देखते जाएंगे. नया रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन डेथ ऑफ द फादर के केस में कैंसलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फादर इज कंपलसरी. तो जितने भी फादर के नाम के रजिस्ट्रेशन थे, सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल होंगे. कौन से वाले? ओनली सोल प्रोप्राइटरी वाले.
मतलब अगर पार्टनरशिप में फादर का बिजनेस था, एंड दैट पार्टनरशिप मे बी कंटेनिंग फादर, सन, वाइफ, सन्स वाइफ, तो अगर ये 4 लोगों की पार्टनरशिप फर्म थी और उसमें से वन ऑफ द पार्टनर इज डाइंग, देन द होल पार्टनरशिप फर्म डिड नॉट रिक्वायर टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। तो वो केस में रजिस्ट्रेशन पूरा कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको इंटीमेशन करना पड़ेगा कंपलसरी डिपार्टमेंट को कि एक पार्टनर अभी नहीं रहा है, तो वो इंटीमेशन वुड बी देयर कंपलसरी, आपको अमेंड कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन आपका, लेकिन कैंसिलेशन इज नॉट कंपलसरी इन दिस केस, दैट इज वेयर यू नीड टू पे अटेंशन। सो अगर प्रोपराइटरी है और प्रोपराइटर का डेथ होता है तो कैंसिलेशन इज मस्ट। फ्रेश रजिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि जो सक्सेसर है उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है या नहीं है। अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नया लेना कंपलसरी है, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो नया अगर वो चाहे तो ले सकता है, अगर उसको सेम कंटिन्यू करना है तो वो सेम भी कंटिन्यू कर सकता है। I hope you understood. So the cancellation is compulsory. Cancellation of registration on account of the death of the proprietor is compulsory. Why? Because of section 29 subsection 1 clause A. ये कंपलसरी बोलता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे इन फॉर्म नंबर REG 16। ऑब्वियसली जिस बंदी की डेथ हो गई वो तो करेगा नहीं, कौन करेगा? उसका सक्सेसरी करेगा ना ये प्रोसेस भी। ये कौन प्रोसेस करेगा? कैंसिलेशन के लिए फाइल के ऊपर से आत्मा तो आएगी नहीं फादर की कैंसिलेशन करने के लिए, तो ये कैंसिलेशन प्रोसेस कौन करेगा? सन ही करने वाला है। तो जब वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो वहां पे भी रीजन ऑफ कैंसिलेशन भी लिखना पड़ेगा ना कि ये कैंसिल क्यों करवा रहे हो। सो वहां पे आप लिखोगे डेथ ऑफ द सोल प्रोपराइटर, एंड देन हियर बिकॉज यू मेंशन द रीजन एज अ डेथ ऑफ द सोल प्रोपराइटर and you are going to continue this business, so you also need to mention the GSTN of the transferee to whom business has been transferred is also required to be mentioned to link the GSTN of the transferor with the GSTN of the transferee. So now अभी आपको समझ में आया कि ये पहले कैंसिलेशन का स्टेप नहीं आया। पहले कौन सा वाला स्टेप आया? पहले नया रजिस्ट्रेशन करवा लो भाई। पहले तुम कैंसिल करवा के बैठे तो फिर जब नया रजिस्ट्रेशन लोगे या फिर कैंसिलेशन के टाइम पे नए रजिस्ट्रेशन जहां पे आपको ITC ट्रांसफर करनी वो नंबर कौन सा डालोगे? तो आप पहले कैंसिल करवाने से पहले आप क्या कराओ, ये पहले आप नया रजिस्ट्रेशन ले लो, क्योंकि जब कैंसिल कराओगे तो आपको यहां पे लिंक देना है कि ये मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा हूं बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ माई फादर, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू मेंशन योर ओन बीइंग अ सन। आपको अपना GSTN भी यहां पे मेंशन करना है, सो दैट GSTN कैन बी लिंक्ड। GSTN कैन बी लिंक्ड कि भाई यहां से ITC ट्रांसफर होने वाली है। वो ऑटोमेटिक नहीं होगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और वो फॉर्म का नाम है ITC 02। आपको ITC 02 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान दो, जो ऊपर इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड लायबिलिटी, तो दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं आपको। आप ऐसा सोच रहे हो कि फादर के पास से सिर्फ मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस मिल जाएगा, उन्होंने जो कुछ भी गफले किए होंगे आगे उसके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना, उनके लिए अगर आपको टैक्स कलेक्ट करना है तो आप जाओ ऊपर भगवान के पास से जाके कलेक्शन करके आओ। ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफर क्या होगा? ITC भी ट्रांसफर होगी as well as liability भी ट्रांसफर होगी। So therefore they are clarifying, the whole crunch of the paragraph is this. It is therefore clarified that the transferee or the successor shall be liable to pay tax, interest or any penalty due from the transferor in case of the transfer of the business due to the death of the sole proprietor। तो आपको सिर्फ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आपको along with the benefit you will also responsible for the liability of your father being a son I am talking। So ITC अगर हम बात करें तो ITC आपको ट्रांसफर किस तरीके से होगी? ITC ट्रांसफर होगी बाय वे ऑफ फाइलिंग ITC 02। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफर करने के लिए ITC 02 फाइल कौन करेगा भाई? देखो, बेनिफिट जिसको देना है ना वो फाइल करेगा कि मैं इसको बेनिफिट दे रहा हूं, तो ये फाइल कौन करेगा? ट्रांसफरर। तो भी ट्रांसफरर तो है नहीं, तो ऑब्वियसली द सक्सेसर एज अ सक्सेसर विल फाइल ITC 02 जहां पे वो मेंशन करेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस ये है। लेकिन आ कहां से रहा है? आ रहा है फादर की GSTN से। तो कौन फाइल कर रहा है? फादर है नहीं, तो उसका सक्सेसर फाइल कर रहा है ITC 02। कहां से? GSTN ऑफ फादर से ये फाइल हो रहा है ITC 02। समझ में आई ना बात? बिकॉज आप
खुद ITC 02 में अगर मैं फाइल कर रहा हूं बीइंग अ सन, तो वैसे तो मैं GSTN यूज कर लूंगा रिलायंस का, तो रिलायंस की ITC सारी मेरे पास आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता ना, बेनिफिट दान देने वाला हाथ लंबाता है और हाथ नीचे रहता है दान लेने वाले का। तो यहां पे भी ITC 02 फाइल कौन करेगा? ट्रांसफर करेगा। लेकिन क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफर नहीं है। सो इसलिए अगर यहां पे लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होना, that in case of the transfer of the business on account of the death of the sole proprietor, the transferee shall or the successor shall file ITC 02। तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन यहां पे सक्सेसर फाइल कर रहा है एज इफ फादर, in respect of the registration which is required to be cancelled on account of the death of the sole proprietor। तो किसके लिए फाइल कर रहा है? जिसका आप कैंसिल कर रहे हो, तो कैंसिलेशन से पहले आपको एंश्योर करना है कि आपने ITC 02 फाइल कर दिया, बाद में कैंसिलेशन फाइल करो भाई। सो आपको ITC 02 पहले फाइल करना है, जहां पे आप क्या लिखोगे कि ITC आप किसको देना चाहते हो, तो ये दान आप किसको देना चाहते हो, तो वहां पे ऑब्वियसली सक्सेसर लिखेगा खुद का GSTN, बिकॉज ITC उसे चाहिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो खुद ले रहा है, लायबिलिटी भी वो खुद ले रहा है। तो ITC 02 में क्या रहेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर, so ITC 02 is required to be filed by the transferee before filing the application for the cancellation of registration। वरना क्या होगा, कैंसिल हो गया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसे ही ITC 02 फाइल होगा, सन को वापस से क्या करना है, अभी काम खत्म नहीं हो चुका है। अपॉन एक्सेप्टेंस बाय द ट्रांसफरी, द अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्पेसिफाइड इन ITC 02 शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो क्या होगा कि आपने फादर के अकाउंट में लॉग इन करके ITC 02 फाइल किया, मेंशन किया दैट दिस इज बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। बाद में आप अपने रजिस्ट्रेशन में गए, मतलब ITC 02 फाइल करने से पहले सन को खुद का रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सबसे पहले काम करना है, इन केस ऑफ द सोल प्रोप्राइटर्स डेथ, सक्सेसर को सबसे पहले काम करना है वो कैंसिलेशन नहीं करना है, ITC 02 भी नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, खुद का रजिस्ट्रेशन लेना है अगर नहीं है तो। अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा ITC 02 वाले स्टेप पे आओ। ठीक है, ITC 02 फाइल कर दिया फादर के अकाउंट से लॉगिन करके। दूसरा काम क्या करना है, अभी खुद के लॉगिन करके जो ITC 02 है आपको दिखेगा, बिकॉज वहां से भेजा है ना, तो यहाँ पे आपको भी दिखेगा। तो यहाँ पे आपको उसको एक्सेप्ट करना है। सो अपॉन एक्सेप्टेंस, ये जो बैलेंस है ITC 02 में जो मेंशन किया हुआ है वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग अ प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो, दिस इज समथिंग अ प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। रिसेंटली हैव a few client where I need to follow this process, so I'll forward this particular lectures link to Irfan also. Irfan, you please listen this very carefully, because this is something which we need to do about those clients for which we need to do about the succession. They have highly non-compliant on this, so we need to advise them this is what they need to do, this is a procedure we need to advise them. Fine, let's move further. The next rule which we need to do today is this rule number 41A. Rule 41A. This is something which you need to do. So let's start. What is this rule 41A? आगे उसका रेफरेंस नहीं आया था, लेकिन क्या है ये rule 41A? There is something which we need to do. नया फॉर्म आ रहा है, that form number is ITC 02A. नया नाम है, हो क्या रहा है प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको क्रंच बता दूं तो फिर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पहले क्या था, this is also in relation with the registration provision. This is something which has been inserted from the 1st February 2019. Now, so far as the final students are concerned, this is something we need to pay attention, because amendment आ रहे हैं और ये amendment थोड़ा टेक्निकल है, जो कि बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सो अगर कॉर्नरिंग करना है थोड़ा सा अभी पेपर में, तो दिस वुड बी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर फाइनल। ऐसा नहीं इंटर में नहीं आ सकता है, लेकिन फाइनल वालों के लिए तो ये हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है, बिकॉज अमेंडेड भी है और कॉर्नर वाला प्रोविजन है। तो जहाँ पे कोई इतना ध्यान नहीं देता है और जहाँ पे आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये अच्छे से सुन लो हो क्या रहा है। पहले क्या था, पहले जब नया नया GST प्रोविजन आए थे तब, तो रजिस्ट्रेशन में ऐसा था कि आपको एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आपका एक ही स्टेट में अगर आपका डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है, बिजनेस वर्टिकल डिफरेंट मतलब क्या, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ITC की होटल्स भी हैं, ITC बिस्किट भी बनाता है, ITC नोटबुक भी बनाता है, ITC सिगरेट्स भी बनाता है। सो दे आर इनटू मल्टीपल बिजनेसेस। So these multiple type of businesses are known as different business vertical,
and all this different business vertical would be having a different type of input service, different type of capital goods, different type of output, have covered at a different rate of tax, classification of everything, business process, everything would be different. And then if an ITC having multiple places of the business, because ITC का पैन नंबर तो एक ही है और गुजरात के अंदर उसका मल्टीपल जगह पे रजिस्ट्रेशन अगर वो नहीं ले रहा है, क्योंकि गुजरात में उसकी आईटीसी के होटल्स भी हैं, उसका टोबैको का फैक्ट्री भी है, उसका बिस्किट का फैक्ट्री भी है, नोटबुक का फैक्ट्री भी है, क्लासमेट जॉब यूज करते हो वो, तो अगर उसको एक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाया ना तो उन लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस हैं जो बहुत फिर डिफिकल्ट हो जाएंगे. तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल वाला रेशियो, सब कुछ फाइंड करना फॉर अ कंपनी, जायंट कंपनी लाइक एन आईटीसी इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो इसलिए स्टार्टिंग में प्रोविजन ऐसा था कि अगर आपका डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है तो ही आप स्टेट के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, तो ही ले सकते हो. और वो भी वॉलेंटरी था, कंपलसरी नहीं था कि आपका अगर अलग अलग बिजनेस वर्टिकल है और फिर भी आपको एक ही रजिस्ट्रेशन रखना है एक स्टेट के अंदर, तो दैट इज वेल गुड इनफ. आपको कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप करवाना चाहते हो तो करा सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल होना चाहिए, तभी आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट करवा सकते हो. लेकिन फिर भी दिस वाज हैविंग अ डिफिकल्टी. कैसे डिफिकल्टी? जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ योर और आवर ओन इंस्टीट्यूट. आप ICAI इंस्टीट्यूट के बारे में जस्ट सोचो. ICAI इज इन द सेम, अगर हम बिजनेस की बात करें तो इट इज इन द सेम बिजनेस but having multiple location in a same state. So गुजरात में अगर हम बात करें तो बड़ौदा, अहमदाबाद, कच्छ, सूरत, राजकोट, there are multiple branches located at multiple places and everyone in the same business vertical, so separate registration was not allowed. गुजरात में उनको एक जगह पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक ही जगह पे रजिस्ट्रेशन होगा और वही जगह से कंप्लायंसेस होंगे. तो अभी बड़ौदा की आईटीसी, सो एग्जांपल में आप सोचो कि अहमदाबाद में रजिस्ट्रेशन करवाया, कंसिडरिंग द बिगेस्ट ब्रांच इन द स्टेट इज एन अहमदाबाद ब्रांच, तो अहमदाबाद में रजिस्ट्रेशन करवाया. अभी जितने भी इनवॉइसेस यहाँ बड़ौदा में आ रहे हैं या फिर सूरत में आ रहे हैं या फिर राजकोट में आ रहे हैं या फिर कच्छ में आ रहे हैं या फिर किसी भी और ब्रांच में आ रहे हैं, जितने भी इनवॉइसेस, उन सारे की आईटीसी कौन लेगा? वो सारी आईटीसी लेगा अहमदाबाद ब्रांच. लेकिन बड़ौदा ब्रांच को भी ये मेंटेन करके रखना है, इनवॉइस वहां पे भेजना है, वापिस से आउटपुट टैक्स कौन चार्ज करेगा? अहमदाबाद ब्रांच चार्ज करेगा. रिटर्न सारे कौन फाइल करेगा? अहमदाबाद फाइल करेगा. टैक्स का पैसा किसने कलेक्ट किया? बड़ौदा ब्रांच ने कलेक्ट किया है, तो ये टैक्स का पैसा कलेक्ट करके भी उनको अहमदाबाद ब्रांच को देना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली बड़ौदा ब्रांच सोचेगी कि आईटीसी की माइनस करके ही मैं अमाउंट दूंगा आपको, सारी अमाउंट क्यों दूं? बहुत सारी डिफिकल्टी. आप जरा सोच के तो देखो क्या लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आके खड़ी रहेगी ये केस में. तो इसलिए बाद में प्रोविजन थोड़े लिबरलाइज हुए. क्या लिबरलाइज हुए? बाद में ऐसा बोला गया, ये पूरी स्टोरी अगर नहीं सुनी ना तो रूल 41A क्या आपको कुछ समझ में ना आए कि क्यों ऐसा है और बाद में आया इसलिए ऐसा करना पड़ा. तो बाद में क्या उन्होंने थोड़ा फ्रीडम दिया, मतलब लिबरलाइज किया थोड़ा पॉलिसी को. क्या बोला कि अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए विद इन द स्टेट हम देंगे आपको, उसके लिए आपको बिजनेस वर्टिकल अलग है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन चाहिए विद इन द सेम स्टेट, इवन दो हैविंग द सेम बिजनेस वर्टिकल, वी विल गिव इट टू यू. ठीक है. पहले क्या था, वो सिर्फ बिजनेस वर्टिकल अलग हो तो ही आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिलता था, जो कि अब आपका बिजनेस वर्टिकल अलग है या नहीं है, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन अगर आप चाहते हो लेना तो आप ले सकते हो. सो ये था चीज पूरे रूल 41A के पीछे का. अभी जैसे ही उन्होंने ये लिबर्टी दी, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम अमेंडमेंट 1 फरवरी 2019 से. वो भी तभी से आया कि अगर आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवाने विद इन द स्टेट, अगर आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवाने हैं विद इन द स्टेट तो आप करवा सकते हो. पहले नहीं था. तो पहले इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन कहां पे था? अहमदाबाद में था. अब बोला अगर आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप करवा सकते हो. तो अभी बड़ौदा ब्रांच भी करवाएगी, सूरत ब्रांच भी करवाएगी, राजकोट ब्रांच भी करवाएगी, गांधीधाम ब्रांच भी करवाएगी, सारी जितनी ब्रांच है, भरूच ब्रांच है तो वो भी करवाएगी. सारी जितना चैप्टर्स हैं, सारे जितने ब्रांच हैं, उनको अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो सारे सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे.
लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि ब्रांच क्या बोलेगी कि देखो यार अब तक जो कुछ हमने परचेस किया, बिकॉज जीएसटी एक्ट तो आया था 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी एक्ट आया था कब से? 1 जुलाई 2017 से। और तब से हम लोग तुम्हें आईटीसी भी देते जा रहे हो, टैक्स का पैसा भी आप लेते जा रहे हो, सारा आप तो लेके गए। और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, बिकॉज क्योंकि हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा था, हमने कोई ज्यादा इवेंट नहीं किए, तो आपके पास से आईटीसी लेना निकलता है। सो अहमदाबाद तो पूरे गुजरात की सारी ब्रांच का आईटीसी लेके बैठा है ना। अहमदाबाद के पास तो आईटीसी सिर्फ अहमदाबाद का था नहीं, अहमदाबाद के पास तो सारे आईटीसी थे, सारे चैप्टर्स के, सारे ब्रांचेस के आईटीसी थे। अब सारे ब्रांच खुद का अलग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो सारी ब्रांच वो भी मांगेगी ना कि हमारी आईटीसी दो हमें, पुरानी जो आपके पास पड़ी हुई है वो। तो अहमदाबाद ब्रांच को वो आईटीसी देनी पड़ेगी, समझ रहे हो, क्योंकि ये भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन आ गया जो पहले नहीं था। तो ये रूल 41A है किसके लिए कि अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाया, अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाया तो आपको आईटीसी मिलेगी। किससे? पहले जो आपका ओरिजिनल अहमदाबाद रजिस्ट्रेशन था, बड़ौदा ने सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाया तो बड़ौदा को आईटीसी मिलेगी कहां से? अहमदाबाद से। सो अहमदाबाद ब्रांच कैन ट्रांसफर एन आईटीसी टू बड़ौदा ब्रांच। तो उसके लिए अहमदाबाद ब्रांच कौन सा फॉर्म फाइल करेगी? आईटीसी 02A। अहमदाबाद ब्रांच कौन सा फॉर्म फाइल करेगी? आईटीसी 02A। और उसको क्या करना पड़ेगा? दिस न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज अ ट्रांसफरी, उसको क्या करना पड़ेगा? he need to accept on this on a common portal। तो उसको एक्सेप्ट करेगा furnished by the transferer। ITC 02 में जो उसने फाइल किया है उसको एक्सेप्ट करेगा और उतनी अमाउंट ऑटोमेटिक उसके क्रेडिट लेजर में आ जाएगी, उतनी अमाउंट ऑटोमेटिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रोवाइजो है बीच में जो हमने नहीं पढ़ा, जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा तो ही हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है? प्रोवाइजो ऐसा बोल रहा है कि देखो यार, आपके दिमाग में आए उतना क्रेडिट आप नहीं दे सकते हो किसी भी नई रजिस्टर्ड हुई ब्रांच को। सो अहमदाबाद ब्रांच को बोला कि आप क्रेडिट देना चाहते हो बड़ौदा को, सूरत को, राजकोट को वाली ब्रांच को, भरूच वाली ब्रांच को, गांधीधाम वाली ब्रांच को आप आईटीसी देना चाहते हो, जो आपके पास पड़ी है आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। क्या रेशियो? दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कौन सी ब्रांच के पास कितनी एसेट है? So value of asset का मतलब भी यहां पे समझा है। Value of asset means the value of entire asset of the business whether or not input tax credit has been availed on the same। So आपको ये आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अहमदाबाद ब्रांच को आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है सारी नई रजिस्टर्ड हुए जो गुजरात में वो वाली ब्रांच को, इन द रेशियो ऑफ एसेट्स विच द न्यूली रजिस्टर्ड ब्रांच इज हैविंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये एसेट के रेशियो में ही ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो मन में आया वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ रजिस्ट्रेशन में आईटीसी कुछ नया डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर करना है तो ये रेशियो में करना है। दैट इज व्हाट दिस रूल 41A इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये फाइनल वाले के लिए अमेंडेड प्रोविजन है, सो आपको दिमाग में होना चाहिए। फॉर्म नंबर इज 02A एंड दिस समथिंग विच वी नीड टू फाइल फॉर गेटिंग एन आईटीसी। कितने दिनों में? तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी है, शैल बी फर्निश्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो 30 days के अंदर ये फॉर्म फाइल कर देना है। तो ये टाइम लिमिट भी है, फॉर्म है, प्रोवाइजो है एंड ये एक्सेप्टेंस वाला प्रोविजन है जो कि हमें ध्यान देना था। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ आईटीसी प्रोविजन। सिंपल है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत सिंपल है। नाउ प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। दिस इज सेक्शन 19। What is this? Taking input tax credit in respect of inputs and capital goods sent to the job worker. Section 19 is again taking input tax credit in respect of inputs and the capital goods sent for job work. तो किसको एप्लीकेबल होते हैं? अभी ना ये whom, why, where, applicable to what, how, ये कोई भी प्रोविजन पढ़ रहे हो ना तो ये बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है जो हर बार जब भी आप कुछ भी पढ़ते हो, साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो ये बेसिक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। एप्लीकेबल टू व्हाट? एप्लीकेबल टू व्हाट? दिस एप्लीकेबल टू इनपुट्स, दिस एप्लीकेबल टू इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स। एप्लीकेबल when these inputs and capital goods are sent for job work, when these input and capital goods are sent for job work, तो उसमें आईटीसी कैसे लेंगे और आईटीसी का कंप्लायंसेस कैसे करेंगे, उसके लिए ये पूरा सेक्शन 19 बना हुआ है। सो नाउ अंडरस्टैंड।
The whole section 19 has been splitted into 7 parts. पहले वाले जो सर्टेन पार्ट्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं इनपुट्स के लिए. नीचे वाले जो प्रोविजन है दोज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू कैपिटल गुड्स. मैं भी आपको पूरा क्रंच पहले बता दूं तो उससे आपको फिर पढ़ने के टाइम पे थोड़ी आसानी होगी पढ़ाई में और अंडरस्टैंड करने में. जॉब वर्क के लिए सेपरेट सेक्शन क्यों आया? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. There are two persons involved in any transaction relating to job work. One is a principal, another is a job worker. So when a principal do not have certain facilities available in his own premises for certain processes, he may send his goods, his capital goods, his input, his raw material to the specialized person called a job worker. क्यों? अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, जगह की दिक्कत है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन प्रिंसिपल डोंट वांट टू डू सर्टेन प्रोसेसेस ऑन हिज ओन, तो वो क्या करेगा? ये प्रोसेस करने के लिए गुड्स को, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, जिसको यूज करके जॉब वर्कर काम करेगा, वो किसको बेच सकता है? जॉब वर्कर को बेच सकता है. So there are certain questions which arise in our mind because this section 19 won't work is as an independent section. आगे section 143 भी है जो कि प्रोविजन रिलेटिंग टू जॉब वर्क वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोविजन कौन से डिस्कस करने हैं हमको? ओनली इन कॉन्टेक्स्ट विथ एन आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो क्या होता है जब प्रिंसिपल कौन होता है? द पर्सन हु इज सेंडिंग अ गुड्स. जॉब वर्कर कौन होता है? हु इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. सो दिस अ प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप हियर. तो जब प्रिंसिपल कोई गुड्स बेचता है अपने प्रीमाइसिस से जॉब वर्कर के प्रीमाइसिस में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या ये ट्रांसफर को सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज गिवन इन सेक्शन 143. लेकिन अभी हम सेक्शन 143 नहीं कर रहे हैं, अभी हम सेक्शन 19 कर रहे हैं. फिर भी आपको आंसर दे देता हूं मैं कि द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर इज यस ट्रीटेड एज ए सप्लाई. नाउ व्हेन आई से यस इट इज ट्रीटेड एज ए सप्लाई, द इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड वुड बी दैट वेदर वी नीड टू पे जीएसटी ऑन दिस और नॉट. आंसर टू दैट वाज नो. व्हाई? अगेन सेक्शन 143. Though the transfer of goods which are happening from the principal to the job worker is treated as a supply, but the GST is not required to be paid on it. The first important point which you need to keep in your mind. The next process which we need to understand here very clearly. See, अब जो अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, आई एम टेलिंग यू, आप जितना जितना पढ़ते जाओगे ना, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं. जब पढ़ते हो तो मैं जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार कुछ नए थॉट्स आते हैं. तो आप इतना समझ के चलो कि वॉट एवर वी आर रीडिंग ना, दैट इज जस्ट अ टिप ऑन द आइसबर्ग. तो आपको जो दिख रहा है ना, दैट इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. नीचे पूरा आइसबर्ग है. तो आपका टाइटेनिक ये फिर आइसबर्ग से ना टकरा गया तो फिर जो दुर्घटना होगी उसके लिए फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है. जितना ध्यान से सुनोगे, जितना ध्यान से पढ़ोगे, उतना टेक्निकल क्लैरिटी आएगा. आप उसको प्रोसेस को फिर नोटबुक में लिखो, चार्ट फॉर्म में प्रिपेयर करो, समराइज करो और पूरे ट्रांजैक्शन को विजुअलाइज करने का ट्राई करो. उसमें सोचो कहां पे कोई लूप रहता है क्या, कहां पे कोई डिफिकल्टी आ सकती है क्या, व्हाट आर द अनदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस व्हिच आर पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज सिमिलर टू डीटी. मैंने बहुत बार बोला है ना, डीटी में तो कैसा है कि बग्गी में बांधे हुए घोड़े जैसा है. उसकी आंखों में पट्टी लगी हुई है, उसको उतना ही दिखता है जितना उसके सामने है. मतलब 2 बच्चे हैं तो इतना एजुकेशन अलाउंस, इतना कमाते हो इतना टैक्स पे करो, इसमें इन्वेस्ट किया डिडक्शन मिल गया. सो वो ना ट्रांजैक्शन ड्रिवन टैक्स नहीं बोल सकते हम उसको, डीटी को ट्रांजैक्शन ड्रिवन टैक्स नहीं बोल सकते हैं, जबकि ये जीएसटी इज अ ट्रांजैक्शन ड्रिवन टैक्स. सो इफ द सेम ट्रांजैक्शन यू आर डूइंग इन अ डिफरेंट वे फॉर द सेम गुड्स टू द सेम पर्सन, बट यू आर डूइंग इन अ डिफरेंट वे, देन द इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्स विल बी चेंजिंग. सो अगर सेम गुड्स अगर मैं किसी मिस्टर एक्स को भेज रहा हूं, तो सेम गुड्स अगर मिस्टर एक्स को भेज रहा हूं तो उस पर टैक्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, भले सेम ही गुड्स क्यों ना हो. बिकॉज पहले वाले केस में अगर मैंने उसको सप्लाई किया, दूसरे वाले केस में एज अ जॉब वर्कर भेजा, तो वो दोनों केस के अंदर ना इंप्लीकेशन ऑफ टैक्स विल बी डिफरेंट. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट द होल जीएसटी इज अ ट्रांजैक्शन ड्रिवन टैक्स.
डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स तो है ही, लेकिन ट्रांजैक्शन ड्रिवन टैक्स है। आप जिस तरीके से ट्रांजैक्शन करोगे टैक्स का इंप्लीकेशन उसी तरीके से चेंज होता जाएगा। सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर प्रिंसिपल कोई गुड्स बेचता है जॉब वर्कर को, अगर प्रिंसिपल कोई गुड्स बेचता है जॉब वर्कर को, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, उसको सप्लाई माना जाता है। तो ऐसा गलत आंसर किसी को मत देना। अगर कोई पूछता है कि अगर प्रिंसिपल गुड्स बेचता है जॉब वर्कर को, उसे सप्लाई माना जाएगा, तो आप बोल दोगे नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स पे नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है, सप्लाई माना जाएगा लेकिन टैक्स पे नहीं होता है। सो एनीथिंग ऑन विच यू आर नॉट पेइंग टैक्स इज नॉट ट्रीटेड एज नॉट सप्लाई। तो वो चीज को दिमाग में रखना। दिक्कत कहां पे आती है? सेक्शन 16 क्रिएट करता है डिफिकल्टी। आईटीसी प्रोविजन डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि सेक्शन 16 ने क्या बोला था, बहुत क्लियरली बोला था। ये पूरी आपको स्टोरी में प्रेजेंट कर देता हूं। सेक्शन 16 ने बोला था कि अगर आपको आईटीसी लेनी है तो आपको इनपुट, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस मिली हुई होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। इनवॉइस तो होना ही चाहिए, वो गुड्स भी आपको मिले हुए होने चाहिए। ठीक है, आपके पास होने चाहिए वो गुड्स। यहां पे किसकी बात हो रही है? सिर्फ इनपुट और कैपिटल गुड्स की। अब सोचो, अभी अगर प्रिंसिपल कोई रॉ मटेरियल खरीदता है और वो खरीदने के बाद वो रॉ मटेरियल को जॉब वर्कर को बेच दिया, उसने वो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद वो रॉ मटेरियल उसको बेच दिया उसने जॉब वर्कर के पास, तो ये रॉ मटेरियल अभी प्रिंसिपल के पास रहा? आंसर इज नो। अगर ये रॉ मटेरियल प्रिंसिपल के पास नहीं रहा तो क्या प्रिंसिपल इस पे आईटीसी अवेल कर पाएगा? सेक्शन 16 के हिसाब से तो सर्टेनली नहीं कर पाएगा। एक ये सिचुएशन हुई। दूसरी सिचुएशन इज वेरी मच पॉसिबल विच हैज बीन ड्यूली टेकन केयर बाय सेक्शन 19। तो मैं वही आपको एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि प्रिंसिपल ने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा। तो पहले वाले एग्जांपल में तो क्या किया था, उसने पहले रॉ मटेरियल अपने प्रीमाइसिस में मंगवाया था, उसके बाद वो वाले रॉ मटेरियल उसने जॉब वर्कर को भेजे थे। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि प्रिंसिपल कुछ रॉ मटेरियल खरीद के सीधा जॉब वर्कर को बेच देता है, अपने पास आते ही नहीं है वो। भाई प्रिंसिपल के प्रीमाइसिस में ये रॉ मटेरियल आता ही नहीं है, सीधा जॉब वर्कर के पास चला जाता है। तो भी क्वेश्चन आता है कि क्या प्रिंसिपल को आईटीसी मिलेगी? बिकॉज वो केस में भी द प्रिंसिपल इज नॉट हैविंग गुड्स इन हिज पोजेशन। तो क्या प्रिंसिपल उस पे आईटीसी ले पाएगा? एग्जैक्ट सेम इज एप्लीकेबल टू कैपिटल गुड्स ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत बार जॉब वर्कर को अपने कैपिटल गुड्स भी बेचता है ना, बाय वे ऑफ सेइंग के आपको ये वाला मशीन यूज करके ये प्रोसेस करना है, जॉब वर्कर को बेच सकता है कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले डिफिकल्टी आती थी जिसको सॉल्व किया है सेक्शन 19 ने। क्या बोला है सेक्शन 19 ने? सेक्शन 19 ने बोला है, आगे वाला ये नहीं पढ़ रहा हूं मैं, सीधा सबसेक्शन 2 पे आता हूं। Notwithstanding anything contained in clause B of subsection 2 of section 16, वो था हमारा रिक्वायरमेंट। प्रिंसिपल shall be entitled to take the credit of input tax. प्रिंसिपल shall be entitled to take credit of input tax on what? यहाँ पे हम बात करें सिर्फ इनपुट की, आगे आएगा तब आएगा कैपिटल गुड्स, यहाँ पे सिर्फ इनपुट की बात है। On inputs even if the inputs are directly sent to the job worker for the job work without being first brought to his place of business। तो अगर सीधा जॉब वर्कर को भेज दिया फिर भी उसको क्रेडिट मिलेगी। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? द प्रिंसिपल सेल सब्जेक्ट टू द कंडीशन। द प्रिंसिपल मतलब कौन सा प्रिंसिपल? जो गुड्स भेज रहा है। प्रिंसिपल सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड द रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब बी अलाउड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स सेंड टू द जॉब वर्कर। तो सबसेक्शन 1 ने क्या बात की कि अगर प्रिंसिपल खुद के पास कोई रॉ मटेरियल पड़ा है अपने प्रीमाइसिस में, वो अगर जॉब वर्कर को भेज रहा है तो उसको क्या आईटीसी इस पे रिवर्स करनी पड़ेगी या फिर जीएसटी पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। प्रिंसिपल आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल को, वो आईटीसी रख सकता है। नॉट जस्ट दैट, सबसेक्शन 2 में आगे क्या बोला कि अगर प्रिंसिपल रॉ मटेरियल खरीद के सीधा जॉब वर्कर को भेज रहा है, अपने पास लाता भी नहीं है, तो भी सेक्शन 19 की बदौलत प्रिंसिपल ये आईटीसी ले पाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, विच अदरवाइज वुड नॉट हैव बीन अलाउड। लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको ये अलाउ कर रहे हैं, सो प्लीज पे अटेंशन। लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे आया ना सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन, तो क्या कंडीशन हो ध्यान से पढ़ो, वरना ना दुर्घटना, जैसे कि मैंने बोला दुर्घटना हो सकती है। सबसेक्शन 3
where inputs sent for job work are not received back by the principal after the completion of job work. Inputs sent for job work not received back, वापिस नहीं आए, because job worker को हमने बेचे नहीं थे. That's why we are expecting it to come back to us. हमने बेचे नहीं थे, हमने सिर्फ कुछ प्रोसेस करने के लिए जॉब वर्कर को दिया था. वहां से प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो जो रॉ मटेरियल है या फिर कैपिटल गुड्स जो उसको भेजा है हमने यूज करने के लिए, तो आफ्टर यूज वी नीड टू गिव दिस फिनिश प्रोडक्ट बैक टू अस. इनपुट जो हमने उसको भेजा था, रॉ मटेरियल जो हमने भेजा था जॉब वर्कर को, तो जॉब वर्कर से हम एक्सपेक्ट करते थे काम खत्म हो जाए तो भाई वापस दे देना, या फिर हम सीधा उधर से सप्लाई कर देते. वापस लाने की ऐसा कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है. आप वहां से डायरेक्टली सप्लाई करना चाहते हो जॉब वर्कर के प्रीमाइसिस से, बिकॉज लास्ट वाली प्रोसेस है वही जॉब वर्कर कर रहा है, तो आपको सीधा वहां से सेल करना है तो भी आप कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है उस केस में भी. सो लेकिन अगर वापिस नहीं आते हैं बाय द प्रिंसिपल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क, और इसलिए बोल रहा हूं और अदरवाइज और आर नॉट सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ द बिजनेस. नॉट सप्लाइड मतलब ना ही वापिस आ रहे हैं, ना ही आपने वहां से मतलब जॉब वर्कर की प्रीमाइसिस से आगे बेचा है, मतलब गए उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है. कितने पीरियड के लिए, कितने पीरियड के लिए? विदिन 1 year फ्रॉम बीइंग सेंट आउट. सो अगर 1 साल हो चुका है ये गुड्स आपने भेजे हैं, रॉ मटेरियल आपने भेजे हैं जॉब वर्कर को, लेकिन 1 साल के अंदर वो या तो वापिस भी नहीं आए, ना ही आपने ये सप्लाई किया है वहां से, मतलब 1 साल के ऊपर हो गया, आपकी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है, तो वहां डिपार्टमेंट को डाउट होता है. तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर 1 साल तक वापिस नहीं आते हो तो देन इट शैल बी deemed that such inputs had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs are sent out. Very harmful provision. Understand? क्या बोला कि अगर 1 साल के अंदर आपने रॉ मटेरियल भेज दिया है आपने आपके जॉब वर्कर को, लेकिन अगर 1 साल के अंदर ये वाले गुड्स ना ही वापिस आए, ना ही आपने आगे सप्लाई कर दिया है सीधा जॉब वर्कर की प्रीमाइसिस से, जो कि लॉ ने अलाउ किया था कि आपको कंपलसरी नहीं है कि वापस लाना है, आपको अगर वहां से सीधा सप्लाई कर देना आप कर दो, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन ना ही आप सप्लाई कर रहे हो ना ही वापस ला रहे हो, 1 साल हो गया, तो डिपार्टमेंट फिर लॉ क्या बोलेगा? फिर लॉ बोलेगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जो गुड्स भेजे हैं, रॉ मटेरियल जो भेजा है जॉब वर्कर को, कि जो भी अभी वापस नहीं आया है उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि पहले नहीं माना था ना, बिकॉज जब भेजा उस पर कोई टैक्स पे नहीं किया था, बिकॉज सेक्शन 143 ने आपको फ्रीडम दी थी कि आप अपना रॉ मटेरियल बेच सकते हो जॉब वर्कर को और उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर 1 साल के अंदर वापस नहीं आता है तो क्या हो जाएगा? तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा. कब से? वो बहुत हार्मफुल है. कब से? when the said inputs are sent out. तो जिस दिन भेजा था 1 साल पहले उस दिन से उसको सप्लाई माना जाएगा. मतलब आपको टैक्स पे करना है 1 साल पहले सप्लाई हुआ है उस तरीके से. तो आप समझ गए इंप्लीकेशन क्या है इसका? नेक्स्ट इंप्लीकेशन इज एन इंटरेस्ट. 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा. तो जैसे 1 साल खत्म होता है, जैसे ही 1 साल खत्म होता है तो वो केस के अंदर 1 साल जैसे ही खत्म हुआ आपको क्या हो जाएगा? फिर आपको ओरिजिनल जब आपने भेजा था तो आपने टैक्स तो पे नहीं किया था, लेकिन जब ओरिजिनल आपने भेजा था ना उसी दिन को क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई हुआ है ऐसा मान लिया जाएगा. और ऑब्वियसली इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगी जिस दिन आपने भेजा था. अभी जिस दिन आपने भेजा था वो आपको कब पता होगा? जब आपकी प्रीमाइसिस से गुड्स निकले थे. अगर आपने डायरेक्टली सेंड कर दिए थे जॉब वर्कर को तो आपको पता नहीं होगा कि कब निकला कैसे है. तो वहां 1 साल का पीरियड कब चालू होगा? ये प्रोवाइजो उसी के लिए है दैट 1 year इन केस व्हेन गुड्स आर सेंड डायरेक्टली. अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजे हैं तो उस केस में 1 year कहां से स्टार्ट होगा? 1 year शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इनपुट बाय द जॉब वर्कर. तो जॉब वर्कर को जिस दिन मिले उस दिन से 1 साल स्टार्ट होगा. अगर आपने डायरेक्टली भेजे हैं गुड्स जॉब वर्कर को तो 1 साल कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन जॉब वर्कर को मिले हैं उस दिन से 1 साल स्टार्ट होगा. अगर आपके प्रीमाइसिस से भेजे हैं तो जिस दिन आपके प्रीमाइसिस से बाहर निकले 1 साल वहां से काउंट होगा. सो दोनों केस के अंदर डेट्स आर डिफरेंट. सो प्लीज पे अटेंशन. तो ये है हमारे 1, 2, 3 द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनपुट्स.
द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनपुट्स। अभी आ रहा है हमारा क्या दूसरा हीरो, कौन सा है दूसरा हीरो, कैपिटल गुड्स। सेम प्रिंसिपल, कोई फर्क नहीं। तो वापस से ना मैं गला नहीं घिसूंगा, बिकॉज क्या हुआ है, ये लेक्चर लेने से पहले ना, आई डोंट नो आपके घर पे लाइट गई थी या नहीं गई थी, ये जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था लैपटॉप के अंदर, ऑब्वियसली लैपटॉप वाज हैविंग अ बैटरी, लेकिन बीच में कहीं पे पहुंचा और लाइट चली गई, तो मुझे एक टॉपिक तो कंक्लूड करना ही था। वो कंक्लूड करने के बाद प्रोसेस होने में भी कुछ टाइम जाता है ना, लेकिन उससे पहले बैटरी चली गई, लैपटॉप बंद हुआ और उसकी 5 सेकंड के अंदर लाइट आई, तो मेरी पूरी जो आधे पौने घंटे की मेहनत थी वो जीरो हो गई। बहुत सारा हाईलाइट करके रखा हुआ था ऑलरेडी मैंने, बिकॉज मैं जैसे ही, मैंने आपको पता है कि आई एम नॉट गॉड, आई नेवर क्लेम कि मुझे सब आता है। जब भी लेक्चर लेने आता हूँ मैं खुद प्रिपेयर होके आता हूँ, जिससे कि आपका टाइम बचे, मैं भी समराइज कर पाऊँ मुझे आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करना है, किस तरीके से डिस्कस करना है, तो मैं मेरा पूरा होमवर्क कर लेता हूँ। सो अगर मुझे 1 घंटे का लेक्चर लेना है ना, तो मैं उसके लिए अच्छी खासी मेहनत करता हूँ पीछे, कि आपको किस तरीके का, मैं कौन से टॉपिक में किस तरीके का एग्जाम्पल दूंगा। हाँ, तो वो पूरा मेरा सेव किया हुआ चला गया था, उसको मुझे फिर से पहला स्टार्ट करना पड़ा था। तो अभी ज़्यादा गला नहीं मैं घिसूंगा, वैसे भी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती है, बुढ़ा हो चुका हूँ फिजिकली। जस्ट किडिंग, लेट्स सी फर्दर। तो आगे जो प्रोविजन है हमारे सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, एग्जैक्टली डीटो प्रोविजन है जो कि इनपुट को एप्लीकेबल होता है। सो कैपिटल गुड्स भी आप सीधा बेच सकते हो, आप आईटीसी ले सकते हो, हाँ, आपके प्रीमिसेस में लाके बेच सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बेच सकते हो, डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर, फिर भी आईटीसी आपको मिलेगी। सिर्फ एक फर्क आता है, क्या, यहाँ पे जो 1 साल था कि 1 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए रॉ मटेरियल, वो यहाँ पे कितना हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है वो 3 साल। सो अगर कैपिटल गुड्स आपने भेजा है तो आपको इंश्योर करना है कि कैपिटल गुड्स आपका 3 साल के अंदर वापस आ जाता है। कैपिटल गुड्स आपका 3 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग और फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, अगर डायरेक्टली भेजा है तो वापिस आ जाना चाहिए। वरना क्या होगा, अगर नहीं आता 3 साल तक, तो द डे व्हेन यू हैव सेंट बिकम द डेट ऑफ सप्लाई। अभी देख लो इंटरेस्ट 3 साल का 18% के हिसाब से, इंप्लीकेशन कितना बड़ा है। हाँ, तो वो चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना। लास्ट सबसेक्शन क्या बोलता है कि ये जो आगे हमने ऊपर जो डिस्कस किया, स्पेसिफिकली फॉर कैपिटल गुड्स, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 shall apply to the mold, dies, jigs, fixtures, tool sent out to the job worker। मतलब बेसिकली 6 में और 3 में डिस्कस किया था टाइम लिमिट ही ना, कि 1 साल या 3 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए। तो 1 साल 3 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए, वो वाला प्रिंसिपल ये वाले गुड्स को अप्लाई नहीं होता है। मतलब आपने भेजा फिर कभी वापस नहीं आएगा ना, तो भी चलेगा, तो भी आपको आईटीसी मिलेगी। तो ये मोल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्सचर, टूल्स सेंट आउट टू द जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क, तो वो केस में ये टाइम पीरियड 1 साल या 3 साल कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता है, कभी भी वापस नहीं आता है तो भी चलेगा। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि ना हम क्या करते हैं, हमको पता है 1 साल 3 साल, लेकिन फिर जैसे कुछ अलग आता है ना तो हमको समझ में नहीं आता, अरे यार ये क्या था, दिमाग में नहीं आएगा, या फिर एग्जाम में हाईलाइट करके नहीं देंगे। फाइनल वाले ध्यान से सुनो, ये मोल्ड, डाइज, जिग्स इंटर वाले के लिए शायद इतना कॉर्नरिंग ना करे, लेकिन फाइनल वाले के लिए कर सकते हैं। मोल्ड, डाइज, जिग्स भेज दिया, उसने लिख दिया, फिर उसको मोल्ड, डाइज, जिग्स को हाईलाइट नहीं करेंगे, वो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि देखो यार इस पे वो टाइम लिमिट एप्लीकेबल 1 या 3 साल वाला नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या बोला, सेक्शन 19 सबसेक्शन 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और उसी के लिए आईटीसी प्रोविजन के सपोर्ट के लिए ही दिस रूल नंबर 45 सेक्शन 19 के सपोर्ट के लिए रूल 45 बनाया गया है। द कंडीशन एंड द रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनपुट्स एंड द कैपिटल गुड्स सेंट आउट टू द जॉब वर्कर। तो क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि दैट इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स या कैपिटल गुड्स आप कुछ भी बेच सकते हो, शैल बी सेंट टू द जॉब वर्कर अंडर द कवर ऑफ चलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब भी प्रिंसिपल जॉब वर्कर को कोई भी रॉ मटेरियल, इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स जब भी बेचता है अपने जॉब वर्कर को, तो ऑब्वियसली इस पे जीएसटी उसको पे नहीं करना है, तो वो इनवॉइस नहीं बनाएगा। तो क्या बनाएगा वो एक और डॉक्यूमेंट है जिसको कि बोलते हैं चलन। हाँ, तो उसको चालान बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ चालान क्या होगा, वो दैट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एन इनवॉइस। सिर्फ नाम उसका चालान है। क्यों?
क्योंकि इनवॉइस तो सप्लाई के केस में इश्यू होता है ना यार, सप्लाई है ही नहीं तो फिर इनवॉइस तो इश्यू होगा नहीं। तो इनवॉइस का नाम बदल के क्या कर दिया उन्होंने, चालान। अब ध्यान से सुनो, अगर आपका इनपुट 1 साल के अंदर नहीं आता है या फिर कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर नहीं आता है, चालान तो आपने जिस दिन भेजा उसी दिन आपने इश्यू कर दिया था, तो दिस चालान विल बिकम एन इनवॉइस इफ योर रॉ मटेरियल और द कैपिटल गुड्स आर नॉट कमिंग बैक टू यू, or if you are not able to supply this raw material or capital goods directly from the premises of the job worker within the period of 1 or 3 years, then this challan is going to become an invoice, ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर वापस नहीं आते तो। और जैसे ये चलन कन्वर्ट हुआ इनवॉइस में तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी आई along with interest। तो चलन will contain all the details which invoice is containing, but just for a time being you are not paying tax on it, that's it, you are not paying tax on it। और किसको बनाना है चलन, ये चलन बाय अ प्रिंसिपल इंक्लूडिंग वेयर द गुड्स आर सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर। तो आपके प्रीमाइसिस से गुड्स निकल के, बीइंग अ प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल के प्रीमाइसिस से गुड्स निकल के जा रहे हैं जॉब वर्कर के पास तो भी चलन बनाना है। आपने डायरेक्टली जॉब वर्कर को दिया तो भी प्रिंसिपल को तो चलन बनाना ही है और जॉब वर्कर को देना ही है। हाँ, या फिर एक जॉब वर्कर के पास से दूसरे जॉब वर्कर के पास भी जाता है, वो भी पॉसिबल है, वो भी अलाउ है। आपको जितने जॉब वर्कर के पास उसको घुमाना है घुमाओ, लेकिन जब जब गुड्स के मूवमेंट होते उतने उतने चलन बनाने पड़ेंगे प्रिंसिपल को। सो इंक्लूडिंग वेयर द गुड्स आर सेंट डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर और वेयर द गुड्स आर सेंट फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर, एंड द चलन मे बी इश्यूड बाय द प्रिंसिपल और द जॉब वर्कर। अगर एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास जाता है तो जॉब वर्कर भी बना सकता है चलन, खुद भी बना सकता है चलन, प्रिंसिपल को भी बनाना है तो बना सकता है, इन दोनों में से कोई भी बना सकता है। ठीक है। एंड चलन विल कंटेन व्हाट डिटेल एज स्पेसिफाइड अंडर रूल 55। तो रूल 55 में जितनी डिटेल्स हैं उतनी डिटेल, तो रूल 55 बेसिकली फॉर एन इनवॉइस, तो इनवॉइस में जितनी डिटेल है उतनी डिटेल ये चालान के अंदर भी रहेगी। नॉट जस्ट दैट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, गवर्नमेंट को ध्यान तो रखना है ना, ये पूरे सिस्टम पे चल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि 1 साल खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, 3 साल खत्म हुए या नहीं हुए हैं, अनलेस प्रिंसिपल नीड टू इंटीमेट। तो प्रिंसिपल को क्या इंटीमेशन देना है ना, चलन जो हमने बनाए हैं वो इनवॉइस तो है नहीं, तो ऑब्वियसली जीएसटीआर 1 में ही नहीं आएंगे या 3B में भी नहीं आएंगे। सो 1 या 3B मेरे नॉर्मल रिटर्न में नहीं आएंगे, वो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई नॉर्मल रिटर्न। लेकिन अगर आप गुड्स भेज रहे हो जॉब वर्कर को तो आपको चालान जो बनाना है दैट ऑब्वियसली वुड बी सीरियली नंबर्ड, और वो चालान की डिटेल जितने जितने गुड्स आपने जॉब वर्कर को भेजे वो सारे चालान की डिटेल आपको एक फॉर्म है ITC 04 उसमें फाइल करना है प्रिंसिपल को। कब फाइल करना है, क्वार्टरली आपको फाइल करना है, क्वार्टरली फॉर द होल क्वार्टर। जितने जितने आपने चालान इश्यू किए हैं, जितनी जितनी अपनी मूवमेंट हुई, जितने जितने गुड्स आपने अपने वहां से या डायरेक्टली अपने जॉब वर्कर को भेजे, उन सारी डिटेल आपको ITC 04 में फाइल करनी है विदिन 25 डेज फ्रॉम द मंथ सक्सीडिंग द सेड क्वार्टर। सो क्वार्टर खत्म होने के 25 तारीख तक, 25th डे, सो क्वार्टर खत्म होने के 25 दिन के अंदर आपको ये ITC 04 प्रिपेयर करना है और फाइल करना है। ठीक है, और दैट डेट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर। तो ये एक्सटेंशन की बात है और कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 4 इज अगेन सब रूल 4 इज अगेन इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ये सब रूल 4 कब एप्लीकेबल होगा आप पढ़ोगे समझ में आएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर जैसे कि मैंने बोला कि गुड्स वापस नहीं आ रहे 1 साल या 3 साल के अंदर, तो क्या होगा? अगर गुड्स वापस नहीं आ रहे 1 या 3 साल के अंदर तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा फ्रॉम द डे ऑफ सेंडिंग इट आउट टू द जॉब वर्कर। तो जब भेजा था तब तो चलन बनाया था, चलन तो GSTR 1 में गया नहीं था। क्योंकि अभी टाइम पीरियड के अंदर वापस नहीं आया है, क्योंकि अभी टाइम पीरियड के अंदर वापस नहीं आया है, तो क्या होगा? अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब ऐसा होगा कि जो चलन था वो इनवॉइस बन गया। अभी चलन इनवॉइस बन गया, क्यों बन गया? बिकॉज गुड्स वापस नहीं आए 1 या 3 साल के अंदर, इसलिए चलन इनवॉइस बन गया। अब चलन जब इनवॉइस बन गया तो टैक्स पे करना पड़ेगा। आप टैक्स पे कर रहे हो तो चलन जो इनवॉइस बना उसको GSTR 1 में भी आपको डालना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ योर GSTR 1 एंड प्रिंसिपल शैल बी लायबल टू पे टैक्स अलॉन्ग विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी जो मैंने बोला ना मेरे घर का नहीं था, लॉ इज वेरी क्लियरली सेइंग दैट ही नीड टू पे अलॉन्ग विथ एन इंटरेस्ट। These are certain definitions and a disclosure part which you need to understand. Fine. So that is something which
we need to study today. From tomorrow, we're going to start with ISD calculation. So in case if you have any doubt, you are free to call me or message me at any point of time. Thank you. Thank you very much.